तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंडिक मास्टर क्लास पर। आप जानते हैं मैं अरमान हूं और आज हमें कॉमर्स यानी कि मैथमेटिक्स बिल्डिंग के बाहर आज एमए इन सोशियोलॉजी का एंट्रेंस पेपर है और जानेंगे स्टूडेंट से कि उनका पेपर कैसा गया है। पेपर हार्ड था या फिर इजी था और उन्होंने कितना अटैम्प्ट करा है, कट ऑफ कितनी जाती है, तैयारी कैसे करनी है, इन सारे सवालों का जवाब भी जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टूडेंट से बात करते हैं। तो एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, चलिए उनका नाम देते हैं। व्हाट्स योर नेम ब्रो? Srikanth. वेयर आर यू फ्रॉम? I am from Telangana. What is the level of paper today? It is good, not bad. We can solve if prepare well. Yeah, based on our preparation, the question, our dependence is most of our questions is known answers, known questions are came, and the question is comparatively previous question paper. It's bit tough. Although despite we prepare well, we can solve it. Okay, how many questions you attempted? 80. 80. 80. And how many questions asked? 100. 100 questions asked. Yeah. And what is the cutoff in this MA Sociology? In previous they for general category they cut off maximum is 70 to 80. But this year maybe competition is very high. That's why maybe it will be rise. Comparison to previous year, this year paper is hard. Yeah, my perspective. Okay. Then cutoff should be low. Yeah, maybe it's not that like that. Some of the students are prepared well. So based on our marks, they will cut the marks and they will make the list who are eligible to this. And a person who's how you prepare for this exam? I prepare. Any coaching center you have joined and No. any book you recommend for coming students? Yeah, one is read Essential Sociology. It is for UPSC optional, and second one is George Reiser, and some of the videos are watched in YouTube. YouTube helped you to prepare this examination. Yeah, of course. Okay, Srikanth, thank you so much to talking to us and thank you so much. Thank you so much. एक और कैंडिडेट हमारे साथ है जिन्होंने एमए सोशियोलॉजी का पेपर दिया है। आप अपना नाम बता दीजिए। जी, माय गुड नेम इज़ भानु प्रताप कुमार एंड आई एम फ्रॉम जामिया ओनली। आई हैव डन फ्रॉम हियर ओनली ग्रेजुएशन। अच्छा, आपने एमए सोशियोलॉजी का पेपर दिया, आज का पेपर कैसा था? इजी था या फिर टफ था? नो, द पेपर ऑफ टुडे, द पेपर इज़ वेरी डिफिकल्ट, ओके, कंपैरिजन टू लास्ट 5 years. लास्ट 5 years? या अपनी तैयारी कैसे करी सोशियोलॉजी के लिए? नो, जस्ट फॉर प्रिपरेशन आई हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स, जस्ट आई हैव रेफर द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड from Unacademy Antrachak madam of all the videos 1000 MCQ, but that I have read, but I think only 4, 5, 10 questions was similar from that, and the rest question was totally, because until and unless when you will not study deeply, you will not score very means you will not fetch very good marks, especially in this test. In the today question paper, it was very difficult question paper. Okay, would you like to recommend any book for this preparation? Just whatever the teacher is teaching you in the graduation, just prefer that book deeply, okay? Otherwise there is no any that particular book from that you can crack the entrance of MA. What is cutoff last year in this course? In this course we all are aware that last year the cutoff is 95. 95? Yeah, but this time I think it will take drastic change. It will come below 50 because the level of question is very difficult. This year cutoff will be low. Yeah, of course low, because the paper is difficult. We know the question cutoff will be go down. Can I ask a question that why you choose Jamia Millia Islamia for MA Sociology? Because the faculty here, the teachers are very good. That's why I decided that no, I should pursue from here only MA. Because although I have read the teacher, those teachers who means the teacher who has taught us in the graduation, the same teacher will going to teach in the MA also. So the teachers are outstanding, so that I have applied for the MA also of Jamia Millia Islamia University. Oh, thank you so much Bhanu to talking to us. Thank you. अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मखदूम हुसैन। कहाँ से हैं आप? फ्रॉम तेलंगाना। तेलंगाना से आप आए हैं। तो आज का पेपर का लेवल क्या था? हार्ड था या फिर इजी था? कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, कुछ इजी नहीं था, मॉडरेट था और थिंकर्स के बारे में क्वेश्चन आदर्स, उसके बुक्स और एथनिक्स ग्रुप्स के लिए उसका क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। पिछले साल का आपने सवाल देखा था? हाँ, देखा था। एक लगभग 5 क्वेश्चन पिछले साल के रिपीटेड हो गए। रिपीट कर दिए गए? रिपीट कर दिए गए। अच्छा, अब पिछले साल के मुकाबले आप क्या देखते हैं? मतलब इजी था या फिर पिछले साल के मुकाबले हार्ड था? नो, ये पिछले साल से मुकाबले से सेम इक्वल लेवल था। इक्वल लेवल था, कोई हार्ड नहीं था, कोई ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड था क्वेश्चंस। पिछले साल तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे।
अच्छा, एक और सवाल ये कि आप एमए सोशियोलॉजी के लिए जामिया को ही क्यों चुनना पसंद किए? जामिया तो एक ही मैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी CU सेट भी लिख रहा हूँ अब नेक्स्ट फर्दर, बट जामिया भी मेरा अपॉर्चुनिटी है। जामिया भी इन केस आ गई तो जामिया भी मैं जॉइन होने का कोशिश है। अच्छा, एमए सोशियोलॉजी के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, जो जामिया एमए सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं अगले साल, उनके लिए आप कुछ ना कहना चाहेंगे कैसे वो तैयारी करें? मोस्टली क्या है, प्रीवियस क्वेश्चंस ज़्यादा देखो, प्रीवियस क्वेश्चंस ज़्यादा अगेन रिपीट रिवाइज करो और कॉन्सेप्ट भी पढ़ो। एक्चुअली मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी है UPSC का, इसलिए मैं लिखा। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया है। पर इसके लिए आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे? एमए सोशियोलॉजी के लिए कोई बुक रिकमेंड किया या फिर कोई कोचिंग है जो ज्वाइन करके बच्चे? बुक तो कुछ नहीं पढ़ा, मेरा तो ऑप्शनल का एक मटेरियल था सरोजा समाल, वही फॉलो हुआ, और विकास रंजन का सर का एक फॉलो हुआ, और प्लस ये प्रीवियस क्वेश्चंस यूट्यूब में मैडम बोले थे 3-4 को, और प्रीवियस पेपर देखा था, उसके बाद आ गया मैं। अच्छा, पिछले साल की वैसे इस साल की कट ऑफ आपको क्या लगता है कितनी जाने वाली, या फिर पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था मुस्लिम्स के लिए? एक्चुअली कट ऑफ तो लगभग 70 तो रहेगा, जनरल का कट ऑफ 75 एबो रहेगा मे बी। अभी तो कट ऑफ मैं नहीं बोल सकता, इस साल का तो नहीं बता सकते, पर पिछले साल की कट ऑफ मुस्लिम्स के लिए आपको पता है? हाँ, लगभग वही है 70 70। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ प्रभात हैं जिन्होंने एमए सोशियोलॉजी का पेपर दिया है, तो आप बता दीजिए कि आपने कितना अटेम्प्ट करा क्वेश्चन आज? 86 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे हैं मैंने। 100 में से 86 अटेम्प्ट? टोटल क्वेश्चन 100 थे, उसमें से 86 अटैम्प्ट करा। आपको क्या लगता है कितना आपने सही किया उसमें? अभी ये तो बाद में ही पता चलेगा, अभी जाके मिलाऊंगा तो देखता हूँ, लेकिन हाँ 75 प्लस में चांसेस है कि 75 प्लस मैंने सही कर दिया है। एक और सवाल ये है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो सवाल पूछा गया था वो आपको क्या लगता है, टफ था या फिर ईजी था? नहीं, पिछले साल के मुकाबले इस साल सवाल का जो ये था वो काफ़ी टफ था। पिछले साल के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 19, 20, 21 तीनों साल के लगाए थे, तो वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस पेपर के मुकाबले काफ़ी आसान थे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कुछ पोर्शंस डिवाइडेड होते हैं कि इस पोर्शन से इतने सवाल पूछे जाएंगे, इस पोर्शन से इतने सवाल, तो किस पोर्शन से ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस? मेनली ये जो थे, मतलब डायरेक्ट लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होते थे वो डायरेक्ट इस थियरी का है, ये मतलब एक सोशियोलॉजिस्ट है उसकी ये थियरी है, उस पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते थे। इस साल का जो क्वेश्चन था वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तो बेसिकली जो मतलब वहीं जो बेसिक थियरीज़ है सोशलॉजी की, जैसे फंक्शनलिज्म हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, तो इन सब पे क्वेश्चन था। पोस्ट मॉडर्निज्म पे क्वेश्चन था, और इथनो मेथोडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, सब पे क्वेश्चंस थे। इसके लिए अगर कोई एमए सोशियोलॉजी जामिया से करना चाहता है तो उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए? आप मैंने जॉर्ज रिडजर की बुक से जो बेसिक सोशियोलॉजी की बुक है, जिसमें से अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट हैं, जैसे मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम, इनके बारे में वहाँ से पढ़ा था। और बाकी यूट्यूब पे एक ट्यूटर हैं अंतरा स्क्वाड करके, उनके चैनल से मैंने काफ़ी हेल्प लिया था, वहाँ से पढ़ा था। बाकी अलग अलग लोग रिकमेंड करते हैं, जैसे इंडियन सोशियोलॉजी के लिए लोग बोलते हैं SC दुबे पढ़ने के लिए, तो वो भी पढ़ सकते हैं, यही है। और इसके अलावा वहीं रिडजर की बुक काफ़ी, मतलब सब प्रेस्क्राइब करते हैं कि रिडजर वाली किताब सबको पढ़नी चाहिए। और इसकी कट ऑफ कितनी जाती है आपको पता है? पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी जनरल के लिए? नहीं, कट ऑफ मुझे भी नहीं पता है कट ऑफ क्या जाती है। और एमए सोशियोलॉजी के लिए आप जामिया को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, इसका कुछ जवाब देंगे आप? नहीं, जामिया वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है इंडिया का, देश का, तो जामिया है, मतलब सिर्फ जामिया नहीं है, मैंने DU का भी डाला है, JNU भी डाला है। तो जामिया में अलग अलग जगह से डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, एक अलग एटमॉस्फेयर मिलता है पढ़ने के लिए, इस वजह से जामिया हमारे प्रेफरेंस में है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रभात, थैंक यू सो मच। थैंक यू।